Okay, so then let's start. We'll start with homework first. First homework was additional question bank, questions 10 to 15. Hmm. Let's check those questions 10 to 15 from additional question bank. हाँ क्या क्या रेशियो मतलब होमवर्क नहीं किया ओके फाइन मतलब you can do it like right now when we are discussing because छोटे छोटे questions है वो बहुत hmm? Hmm. So let's start with questions 10 to 15 this homework first. Question 10, anyone, any answer? One. Anyone else? One. बाकी लोग वन. वन इज मोस्टली करेक्ट. लेट्स चेक कैसा है वो. एक्स रेज टू क्या हो जाएगा ये पहला वाला टर्म बी माइनस सी करेक्ट इनटू ए मतलब दैट विल बी ए बी माइनस ए सी. Similarly next will be plus bc minus ba plus ac minus bc. So everything is yes getting cancelled. So x raised to 0 x raised to 0 is 1. आई थिंक सभी क्वेश्चन का आंसर 1 ही आया होगा यहाँ पे राइट. 13 छोड़ के. हाँ. 11th show that x raised to b upon x raised to c raised to 1 by b by c 1 by b into c. Fine. Can I say it is easier to assume numbers here a1 b2 c3? Fine. So it will be x raised to b minus c is 2 minus 3, so x raised to minus 1 divided by b into c. b into c मतलब 2 into 3 6 plus c minus a is 3 minus 1 2 divided by c into a 3 into 1 3 plus a minus b that is again minus 1 divided by a into b that is 2. Fine. You can do it on calculator also. 1 by 6 m minus 2 by 3 m plus 1 by 2 m minus x raised to 0 आता है. 1 is the correct answer. सबका आया ना. yes no पता नहीं. 12th is also 1. वो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. दिस क्वेश्चन वाज देयर इन एक्सरसाइज आल्सो. a minus b into a square plus ab plus b square, that is formula of a minus b sorry a cube minus b cube. So that is going to be x raised to a cube minus b cube plus b cube minus c cube plus c cube minus a cube. So everything gets cancelled. 1 is again the correct answer. 13th, let's see now. Anyone, any answer 13th? 81. Anyone else? एटी 1. बाकी लोग नहीं किया ना होमवर्क. 89. आई होप होमवर्क किया है बाकी लोगों ने. अगर होमवर्क नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे आगे जाके. 81. लेट्स चेक. 4 is what? 2 raised to into 2 raised to 3 into 2 raised to 4. तो पावर्स ऐड कर दिए तो 2 raised to x plus y is equal to 2 raised to what? 2 plus 3 plus 4 is how much? 9. That means x plus y is 9 because we know that when base is same, power is also same. If x plus y is 9, x plus y square is 81. 81 is correct. How did you do it? Fine, that is also okay. If you multiply this first and then write it as power, then still तुम्हारा 2 raised to 9 ही आया होगा फिर, right? हाँ, that's bit longer. मतलब multiply करते बैठना पड़ेगा. बट ठीक है, मतलब कैलकुलेटर है तो ठीक है. 14th मोस्ट प्रोबेबली 1 ही होगा. है क्या 1? 1 ही है ना. Anyone else? 14th 1. Okay.
Can I see here also it is easier to put numbers a1 b2 c3. It is easier here, I think, rather than multiplying the brackets. So x raised to b minus c is minus 2, sorry, minus 1, into b plus c minus a, that is 2 plus 3, 5, 5 minus 1, 4, plus c minus a is 3 minus 1, 2, into c plus a minus b, that is 3 plus 1, 4, 4 minus 2, 2, plus a minus b, that is minus 1, and a plus b minus c, that is 1 plus 2 minus 3, 0. So minus 4 plus 4, that is x raised to 0. 1 is the correct answer. 15, anyone? इसका 1 नहीं आंसर. 1 is not the answer here. C. Okay, anyone else? C. Okay. Now understand, here also we can assume 1, 2, 3 as ABC, but the problem is ऑप्शंस में भी 1 ABC है. तो क्या करना पड़ेगा आपको, आंसर आने पर ऑप्शंस में भी ABC को 1, 2, 3 डाल के देखना पड़ेगा. दैट माइट बी कॉम्प्लिकेटेड. तो इट इज बेटर कि इसको सॉल्व करते हैं. हाउ टू सॉल्व इट? लेट्स सॉल्व ओनली वन टर्म and according to that let's solve other terms. So according to this one term, can you tell me if we combine this what will happen? X raised to what? Correct. A minus minus b, that is a plus b. So that will be x raised to a plus b into that second bracket is a square minus ab plus b square. Okay, let's open the bracket. A into a square is, बोलो कोई तो फास्ट. A cube, next minus, करेक्ट, a और ab मतलब a दो बार मतलब a स्क्वायर एंड b, एंड देन प्लस ab स्क्वायर, करेक्ट, प्लस करेक्ट b a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, करेक्ट. So this gets cancelled. It is x raised to a cube plus b cube. तो सिमिलरली सेकेंड टर्म आने वाला है b क्यूब प्लस c क्यूब, एंड नेक्स्ट आने वाला है a क्यूब प्लस c क्यूब. तो सबको ऐड किया तो वी गेट x रेज टू a क्यूब दो बार मतलब 2a क्यूब प्लस b क्यूब दो बार मतलब 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब. 2 कॉमन दिया तो क्या आएगा? x रेज टू 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, विच इज ऑप्शन 2, C. लेट मी नो ये सबको क्लियर है क्या? बाकी लोग जो साइलेंट है. अच्छा, एक लोग आता है क्या? बाकी लोग मतलब नाम लेके पूछना पड़ेगा शायद. ये है सर. ओके, फाइन, ठीक है. दीज वर होमवर्क्स 10 to 15. नेक्स्ट वाज होमवर्क फ्रॉम रेशियोज. रेशियोज के 12, 13, 23, 24, 25. फाइन. 12, 13, 23 to 25. Let's solve. If a is to b is 3 is to 4, then what is value of this? Anyone? Any answer? D, 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 okay. D, okay, D आ रहा है सबका, fine. Let's check. What have they given? A is to b is 3 is to 4. And they're asking us 2a plus 3b is to 3a plus 4b. Now see, we can assume a as 3 and b as 4 for simplicity. Ideally 3 and 4 नहीं assume करना चाहिए. Ideally, do you remember, if a is to b is 3 is to 4, तो फिर a and b को क्या assume करना चाहिए हमने? Ideally 3 and 4 नहीं करना चाहिए.
क्योंकि रेशियो का मतलब ऐसा नहीं होता कि A 3 है एंड B 4 है। आइडियली क्या होता है उसका मतलब? करेक्ट, आइडियली वी शुड अज्यूम A as 3x एंड B as 4x, बट इट डज नॉट मैटर क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है वैसे भी। देखो अब 2A मतलब 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3B दैट इज 3 इंटू 4 12x अपॉन 3A दैट इज 3 इंटू 3 9x प्लस 4B दैट इज 4 इंटू 4 16x। सो 6 प्लस 12 मतलब 18x बाय 25x, x कैंसिल होकर 18 बाय 25 इज द करेक्ट आंसर। जनरली x लेके करो, क्यों? क्योंकि अगर x कैंसिल नहीं हुआ एंड में तो प्रॉब्लम आएगा अदरवाइज। So you should check कि x कैंसिल हो रहा है ना सच में एंड में। 18 by 25 is the correct answer, option D. 13 anyone? Thirteenth. E, okay. A. बाकी लोग A. कैरन, धनश्री, करिश्मा, पूनम, कीर्ति। नहीं किया ना होमवर्क आप लोगों ने? From tomorrow I am going to ask one by one, and अगर होमवर्क नहीं किया है तो I am going to give additional homework. क्वेश्चंस की कमी नहीं है वैसे भी हमारे पास। Two numbers are in the ratio 2:3. If 4 is subtracted from each, I am telling you right now, मतलब अभी से कि अगर if you don't cope up with homework, if you don't keep up with class, then it is going to be very difficult. Syllabus is not less, बहुत ज़्यादा syllabus है। मैथ्स का syllabus is too much. 15-16 chapters करने हमें only for math stats, तो that is not small. तो अगर होमवर्क कीप अप नहीं किया तो फिर बाद में इतना बैकलॉग बढ़ेगा कि पॉसिबल ही नहीं होगा फिर कंप्लीट करना। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दे आर इन द रेशियो 3:5. मुझे बोलो ऑप्शन बी हो सकता है क्या? क्यों नहीं? करेक्ट, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 हो जाएगा, 0 से रेशियो ही नहीं बन सकता, राइट? सो दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन सी हो सकता है क्या? लेट्स चेक। 2:3 तो है रेशियो, लेकिन 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 इज हाउ मच? -2. 3 माइनस 4 इज -1. करेक्ट। 3:5 है क्या ये रेशियो? No, so this is also not correct. Option A, 16:24. First of all, is that 2:3? Yes, 8 से कैंसिल किया तो 2, सॉरी 2 एंड 3 एंड 4 माइनस करके देखते हैं। 4 माइनस किया तो क्या नंबर्स आएंगे? 12 एंड 20. इज दैट इन द रेशियो ऑफ 3:5? चेक करो। करेक्ट, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। 23 anyone? 23 to 25. A, 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 okay. Let's read. The number which, when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31, मतलब नंबर विच इज व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस रेशियो, मतलब इस रेशियो के टर्म से हम वो नंबर माइनस कर रहे हैं, एंड देन इट रिड्यूसेस टू 1:4, दैट इज रिड्यूसिंग इट टू 1/4. ठीक है, सो ऑब्वियसली लेट्स गो बाय ऑप्शंस। 15 माइनस करके देखते हैं। 19 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 4. एंड 31 माइनस 15 इज 16. 4:16, इज इट 1:4? यस, 4/16 को कैंसिल किया तो 1/4 ही आता है, राइट? ए इज द करेक्ट आंसर, गुड। 24th एनीवन?
C. Okay, C is correct. Let's check. Day B. Okay, check करते हैं, चलो. Daily earnings of two persons are in the ratio 4:5. Earnings are in the ratio 4:5. Their daily expenses are in the ratio 7:9. And each saves 50 per day. Then what are their daily earnings? First of all, tell me earnings. Can I say earnings minus savings will be expenses? करेक्ट है क्या? जो अर्न किया माइनस जो सेव किया, मतलब जो खर्चा किया. फाइन. सो ने अर्निंग्स पूछा, अर्निंग्स का रेशो 4:5 बोला है, मतलब कहने से ऑप्शन बी पहले ही चला गया, क्योंकि 4:5 है ही नहीं वो रेशो. भूषण समझा क्या? तुमने बी बोला ना ऑप्शन. ऑप्शन बी तो पहले ही चला गया ना, क्योंकि 4:5 है ही नहीं उसका रेशो. ऑप्शन ए देखना पड़ेगा. ऑप्शन ए में देखो, अगर इतने उनके अर्निंग्स है तो 50 रुपीज सेव कर सकते हैं क्या वो? नो, 40 रुपीज अर्न करे तो 50 कहां से सेव करेंगे? सो दिस ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो सी चेक करके देखते हैं. 4:5 तो है, 50 रुपीज सेव किया तो एक्सपेंसेस कितने आएंगे उनके? 350 एंड 450. इज इट इन द रेशियो ऑफ 7:9? चेक. वो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं. हाउ टू डू दैट? 7/9 करके देखो कैलकुलेटर पे कितना आता है. 7/9 0.777. एंड ये भी डिवाइड करके देखो उतना ही आता है क्या? 350/450 आता है, मतलब रेशियो इज सेम. सी इज द करेक्ट आंसर. गुड. 25. सी. Anyone else? I guess C. Okay. दो लोगों ने होमवर्क किया, मतलब इतने लोगों से ये क्वेश्चन. नॉट इक्वल. करेक्ट. Concentrate. Ratio between speeds of two trains is 7:8. Second train runs 400 kilometers in 5 hours. स्पीड कैसे मेजर करते हैं? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. 400 किलोमीटर्स डिस्टेंस 5 आवर्स में, मतलब कितना पर आवर डिस्टेंस कितना है उस से ट्रेन 2 का? 400/5 कितना था? 80. करेक्ट. हाँ 80. करेक्ट. हाँ. सो 80 किलोमीटर्स पर आवर इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन. तो 7:8 है और सेकेंड का हम 80 बोल रहे हैं, तो फर्स्ट का कितना होगा? ऑब्वियसली 70. करेक्ट. क्योंकि 7/8 है एंड सेकेंड वाला 80 है, तो ये 70 होने वाला है. फिर 70 इज द करेक्ट आंसर. एनी डाउट एनीवन? ठीक है. ठीक है, अब लेट्स चेक कौन से क्वेश्चंस बाकी है. फर्स्ट पेज ऑल इज डन. सेकंड पेज. व्हाट इज पेंडिंग ऑन सेकंड पेज? 16 and 19. राइट. सॉल्व 16th फर्स्ट. सॉल्व 16th. सोच के करो. 16th. सी है क्या उसका आंसर?
Anand earns 80 in 7 hours and Pramod 90 in 12 hours. So is the answer 8:9? Yeah, no. Why not? Time is different, right? Fine. सोचो कुछ तो. B, okay. चेक करते हैं. Anyone else? B, none of these. Okay. Okay, let's check करते हैं. और कोई votes? Okay, tell me. Anand earns 80 in 7 hours. 80 rupees in 7 hours मतलब एक आवर में कितना अर्न करता है वो? How much does he earn in 1 hour? 7 hours में 80 अर्न करता है मतलब 1 hour में कितना अर्न करता है? मतलब 80 by 7. करेक्ट, 80 by 7. प्रमोद 90 अर्न करता है 12 आवर्स में मतलब एक आवर में कितना अर्न करता है? 90 by 12. कहना से इन दोनों का रेशियो लेना है हमें. फाइन. अब आइदर अभी कैलकुलेटर पे लो उसको, नो प्रॉब्लम. 80 by 7 कितना था कैलकुलेटर पे? 11.4285 समथिंग. एंड 90 by 12 कितना था? 7.5. उनको डिवाइड करके देखो. व्हाट इज 11.4285 डिवाइडेड बाय 7.5? 1.5238 समथिंग. फाइन. चेक करो ऑप्शंस में. 3. हाँ ठीक है, राउंडिंग ऑफ पे डिपेंड करेगा. अब ऑप्शन से चेक करो विच वन इज 1.523 समथिंग. ऑप्शन ए, राइट. बी कैसे आया था? बी कैसे आया था? जिनका आया था वो लोग कुछ तो. भूषण का कैसे आया था? एंड समवन एल्स, कैरन आई गेस. ओके. 20 और 12 आया. फाइन. समझा क्या सबको? ए आंसर कैसे? क्लियर है? फाइन. 19 सॉल्व करो फास्ट. अब तक होना चाहिए तो. एक सेकेंड का क्वेश्चन है. बी, ओके. 3 और 4 लो मतलब 3x एंड 4x. 3 4 लिया तो भी चलेगा अभी के लिए. x स्क्वायर इंटू वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ओके. 84/91 आता है. वो डिवाइड करके देख सकते हो एंड इसमें भी डिवाइड करके देख सकते हो. 84/91 इज 0.92307. ऑप्शंस में भी चेक करो कौन सा आता है. वो बी आता है. बी इज करेक्ट. कैसे? तो फिर बी कैसे? ओके.
करिश्मा, कीर्ति, धनश्री आया क्या? हम्म हम्म ओके, सो गॉट इट नाउ. फाइन फाइन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 and 21 is tricky. Hmm. Take it as homework. Let's see how many of you can solve it. 20, 21, 22. Take them as homeworks. Sorry, can you repeat? Yes, for registration you have to go to the official website. Like first you have to register for foundation, then only you can order books. Foundation का procedure का link I have put it on the group. You can refer from there. No, मैंने डाला है ऑलरेडी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, देखो एक बार. मिल जाएगा. ओके. हाँ, यस, कर लो. द अर्लियर यू रजिस्टर द बेटर, क्योंकि बुक्स जल्दी से आ जाते हैं. फाइन. चलो, दीज 3 आर होमवर्क्स. एंड नाउ let's solve one more question, then we'll go to the concept of proportions. One more question is this from solved examples. Okay, this is a good question. You can mark it. Example 3. Let's read it. Find in what ratio, carefully padho, in what ratio will the total wages of workers of a factory be increased or decreased if there be a reduction, matlab there is a reduction in number of workers in the ratio 15:11 and increment in their wages in the ratio 22:25. Carefully देखो. They are saying number of workers कम हो गए एंड उनके वेजेस इंक्रीज हो गए पर वर्कर के, तो टोटल वेजेस में क्या चेंज होगा? मुझे बोलो, लेट से हमारे पास एक 10 वर्कर्स है एंड हर एक के वेजेस 40 रुपीज पर पर्सन है, तो टोटल कितने वेजेस हो गए फिर? 10 वर्कर्स एंड 40 रुपीज मतलब 400. फाइन. तो फिर अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया कि वी हैव x वर्कर्स एंड y वेजेस पर वर्कर, तो फिर टोटल वेजेस कितने हो गए फिर? एक्स वाई. करेक्ट. तो उनके टोटल वेजेस है अभी एक्स वाई. अज्यूम करना है तो हम 100 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेट्स से टोटल वेजेस है उनके एक्स वाई. ठीक है, उसमें से एक्स ये वर्कर्स है, वाई ये पर वर्कर के वेजेस है. अब ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन से देखो. टेल मी, नंबर ऑफ वर्कर्स में क्या हुआ है? रिडक्शन या डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज इन द रेशियो 15:11. तो ओरिजिनल वर्कर्स जो थे, वर्कर्स वो थे x. 15:11 में डिक्रीज हुआ तो कैसे करते हैं हम? डिवाइडेड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? करेक्ट. 15 was the old value and now it is 11. तो न्यू वर्कर्स आर हाउ मच अब? करेक्ट, 11x by 15. यहां तक सबको समझा क्या? ओके, फाइन. सिमिलरली वो जो पर वर्कर के वेजेस है ना, एक वर्कर की वेजेस, वो है y. वो क्वेश्चन पढ़ो एंड मुझे बोलो y का क्या हो जाएगा? आप इंक्रीज, मतलब y विल बिकम y into what upon what? करेक्ट. वेजेस हैव इंक्रीज, मतलब पहले अगर 22 थे तो अब 25 हो गए, मतलब कहने से y was 22, now it is 25. So y will become 25y by 22. यहां तक क्लियर है सबको? बाकी लोग आंसर करो, सब लोग. ओके. तो पहले जब x वर्कर्स एंड y रुपीज थे तो हमने एक्स वाई किया. अब इतने वर्कर्स एंड इतने रुपीज हो गए, तो कहने से उनको मल्टीप्लाई करके टोटल वेजेस मिल सकते हैं. अब कितने हो जाएंगे टोटल वेजेस फिर? व्हाट इनटू व्हाट?
करेक्ट 11x बाय 15 इंटू 25y बाय 22। कैंसिल करते हैं उसको, चलो 1 2 5 इंटू 3 5 इंटू 5 क्या बच जाएगा? 5 बाय 6 एक्स वाई, करेक्ट। देखो x बाय 3 बचा यहाँ पे एंड 5y बाय 2 बचा। सो इफ वी रीअरेंज एक्स वाई को एक साथ लिखा तो 5 बाय 3 इंटू 2 6, 5 बाय 6 एक्स वाई बचा अब। तो ये हो गया हमारे न्यू वेजेस। कैन यू टेल मी हमारे ओल्ड वेजेस कितने थे टोटल? जब एक्स वर्कर्स एंड वाई रुपीज थे तो कितने वेजेस थे? ओरिजिनली व्हाट वर आवर वेजेस? एक्स इंटू वाई बस, राइट। अब वो हो गए एक्स वाई इंटू 5 बाय 6, मतलब रिड्यूस हुए या इंक्रीज हुए? रिड्यूस हुए, करेक्ट। दैट इज इफ दिस वाज द ओल्ड वैल्यू, दिस इज नाउ द न्यू वैल्यू। मतलब कैन आई से दे हैव रिड्यूस्ड in the ratio of what? 6 is to 5। लेट मी नो सबको क्लियर है क्या, एक बार देख लो ठीक से। नोट करना है तो करो, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसके जैसा। आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, नोट इट डाउन इफ यू वांट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सो यू कैन मार्क इट। स्क्रॉल अप। ओके, okay then take down one more question like this. Let's see if you can solve it. There are certain number of items packed in identical boxes. If number of boxes is reduced, if number of boxes is reduced in 4 is to 1 and each box, capacity of each box is increased in
2:7. Find increase oblique decrease in total number of items. ओके, पहले समझ लो खुद से, देन सॉल्व करो, फिर हम करते हैं. हाँ करो करो, नो प्रॉब्लम. क्या आंसर? डिक्रीज इन 8:7. ओके, और कुछ आंसर है तो बोलो, लिख के रखते हैं फिर चेक करते हैं. सॉल्व सॉल्व सॉल्व. ओके, सेम. ओके, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे. पहले क्वेश्चन समझ लो. सर्टन नंबर ऑफ आइटम्स इन आइडेंटिकल बॉक्सेस, मतलब सेम टाइप के बॉक्सेस में कुछ आइटम्स रखे हैं. धनश्री टेल मी, अगर x बॉक्सेस है हमारे पास और हर एक बॉक्स में y आइटम्स फिट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स में 4 आइटम्स फिट होते हैं, तो मतलब कितने आइटम्स है हमारे पास टोटल? 10. मतलब 10 इंटू 4, राइट? अगर 10 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स में 4 है, मतलब टोटल 40 आइटम्स है हमारे पास. हम्म तो अगर हमने ऐसा अज्यूम किया कि हमारे पास बॉक्सेस है x एंड बॉक्सेस की कैपेसिटी है y, तो कहने से टोटल आइटम्स कितने हैं हमारे पास? एक्स वाई. फाइन. अब बॉक्सेस क्या हो गए? रिड्यूस हो गए 4:1 में. तो x को तो हमें रिड्यूस करना है. रिड्यूस कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय क्या एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या? करेक्ट, क्योंकि देखो पहले 4 था तो अब 1 हो गया ना, मतलब ये ओल्ड वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, रिड्यूस हो गया मतलब. तो पहले 4 था तो अब 1 हो गया. एंड y का क्या होगा? धनश्री कैन यू टेल मी y का क्या होगा? कैपेसिटी. हाँ, करेक्ट, अपॉन 2 into 7. फिर अब इतनी टोटल हो जाएगी हमारी, मतलब अब ये न्यू टोटल हो जाएगी. तो न्यू टोटल मतलब क्या होगी? एक्स वाई अलग रखा हमने, तो 7/8. मतलब पहले ओल्ड 8 था तो न्यू 7 हो गया, मतलब 8:7 में डिक्रीज हो गया. दैट इज करेक्ट. गुड. देखो सबको समझाया क्या? हम्म ओके. So then if there is no doubt, then let's go to, कैसे?
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। मतलब क्या, x को कुछ तो वैल्यू लो, x 100 बॉक्सेस एंड 20 या 10 बॉक्सेस एंड 4 कैपेसिटी, ऐसा लो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट फिर वो पॉइंट पे आने के चांसेस है ना नंबर, इसलिए। आया ना? हाँ, जस्ट पॉइंट में आया तो यू हैव टू टेक केयर, दैट्स इट। करेक्ट आंसर सेम, आंसर तो सेम ही आएगा। हम्म हम्म। नहीं, क्या होगा भूषण कि तुमने नंबर सही लिए तो ठीक है, अगर तुमने नंबर्स ऐसे लिए जो डिवाइड ही नहीं होते 2 से या 4 से, तो फिर प्रॉब्लम आएगा ना, तो पॉइंट में आएगा तुम्हारा आंसर। तो इसलिए नंबर्स केयरफुली दी तो दैट इज ओके। हाँ, नेक्स्ट। ratios was only this much, let's go to proportions। ratios का होमवर्क है, डोंट फॉरगेट आयुष। प्रोपोर्शन तो इससे भी इजी है। प्रोपोर्शन मतलब क्या, when two ratios are equal, when two ratios are equal, we say that the numbers are in proportion। मतलब क्या बोलता हूं, when two ratios are equal we say that the numbers are in proportion। मतलब अगर हमने ऐसा बोला, a b c d are in proportion, a b c d are in proportion का मतलब क्या होता है कि a is to b का जो रेशो है एंड c is to d का जो रेशो है इट इज सेम। a is to b मतलब a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, दैट्स इट। ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, बस इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, दैट्स इट। नोट कर लो ये, इसके भी थोड़े से प्रॉपर्टीज है। डन, ओके। सबका हो गया? रुकना है तो बोलो किसी को। हम्म हम्म अच्छा, रुकना है, अच्छा इसलिए नो, ओके करो। तो नीचे लिखो ए बी सी डी, ये जो चार नंबर्स प्रोपोर्शन में है, मतलब ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, उसमें से बी एंड सी जो बीच के नंबर्स है दे आर कॉल्ड एज मीन्स, एंड ये ए एंड डी जो है दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स। एंड ए बी सी डी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल।
डन। नाउ कॉन्सेंट्रेट, जब चार नंबर्स प्रोपोर्शन में होते तो ऐसा होता है a is to b is equal to c is to d। बट अगर तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में है, लिखो a b c आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा है सपोज, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में तो उसका मतलब होता है a is to b is equal to b is to c। मतलब a by b is equal to b by c। उसको रीअरेंज किया तो क्या आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, सी को यहाँ पे लो और बी को यहाँ पे लो, करेक्ट। ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ऐसा है तो उसको बोलते हैं कि तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अगर चार नंबर्स प्रोपोर्शन में तो ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में तो ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। रिमेंबर, सेम उसमें भी ए बी सी अगर है तो ए बी को मीन बोलते हैं, ए एंड सी को एक्सट्रीम्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। बस। डन। तो सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। आगे वाला थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं बाद में, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन सॉल्व नियरली ऑल ऑफ दैट एक्सरसाइज। तो देखो, कम टू एक्सरसाइज 1b, कम टू एक्सरसाइज 1b। एक दो क्वेश्चंस हम एक साथ करते हैं, देन यू कैन सॉल्व। लेट्स सॉल्व फर्स्ट टू क्वेश्चंस टुगेदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पेज नंबर है 1.12। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 468 इज। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब क्या, 4 6 8 एंड क्वेश्चन मार्क। तो कैसे इक्वेशन बनेगा बोलो। करेक्ट। तो इजी है, क्या आंसर फिर आएगा सबका 12। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 इंटू 6/4 हो जाएगा ना, 12। आया सबका, बाकी लोग ओके। सेकेंड वाला भी एक साथ करते हैं, हाँ सेकेंड वाला भी एक साथ करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18, मतलब थ्री नंबर्स प्रोपोर्शन में है। थ्री नंबर्स प्रोपोर्शन में तो क्या होता है, 12/18 इज इक्वल टू व्हाट। अभी ऊपर जाके देखो, अगर थ्री नंबर से प्रोपोर्शन में 12 18 एंड क्वेश्चन मार्क, तो 12/18, हाँ मतलब 12/18 इज इक्वल टू 18 बाय क्वेश्चन मार्क। अब राइट, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको ना। कैसे देख रहा था हमने, देखो, इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। मतलब क्या हो जाएगा, 12/18 इज इक्वल टू 18 बाय क्वेश्चन मार्क। तो क्या आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क, एनीवन। 27, करेक्ट। चेक करो सबका आया क्या। एवरीवन एल्स आया क्या। यस नो पता नहीं। यस, देन सॉल्व 3 4 5 6 7, देन विल चेक। सॉल्व 3 4 5 6 7, देन विल चेक।
डन। ओके, 6 में थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा सबको। एंड फोर्थ में थोड़ा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा उसको आपको। डन। क्या हुआ? एनीवन एल्स? आयुष, भूषण। ओके ओके ओके, करो करो, फाइन। करिश्मा, धनश्री, कीर्ति। ओके, करो। हाँ, करो करो, ठीक है, ओके।
ओके। हम्म। क्या है? अब क्या करें, वो आप लोग इतना जब सॉल्व करते हो तो, स्पेशली जब लॉजिकल रीजनिंग में जाएंगे तब तो मुझे ऐसे बैठना ही है आप लोगों को सॉल्व करके देने। तो बहुत सारा आर्ट देखने को मिलेगा आपको। हाँ। क्या? हाँ, लास्ट ओके, करो करो। नहीं आ रहा है ऐसा बोल रही हो क्या? क्या कर रही हो? हाँ। हाँ, मतलब कर रही हो या नहीं आ रहा है, ट्राई किए? ओके ओके, ठीक है, फाइन। तो तुम ही मुझे बोलो पहले, थर्ड का आंसर क्या है? बी। लेट्स चेक। थर्ड, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। मीन प्रोपोर्शन मतलब 25 बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय 81, राइट? मतलब वो बी लिखा उसको सपोज हमने, तो फिर आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 81। कितना था 25 इंटू 81? 2025। तो उसका रूट लेना पड़ेगा। 45 आता है ना फिर आंसर। चेक करो धनश्री एक बार। वाई 50। हाँ, 45 ना, क्योंकि देखो 25 बाय बी इज इक्वल टू बी बाय 81, क्योंकि उन्होंने बोला 25 बी एंड 81, मिडिल नंबर पूछा उन्होंने। हम्म। तो फिर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 इंटू 81, वो तो आता है 2025। तो फिर उसका रूट लिया तो 45 आ रहा है। क्लियर है ना? ठीक है। देन करिश्मा, कैन यू टेल मी फोर्थ वन? करिश्मा। डी। क्या है आंसर फिर करेक्ट उसका? डी इज करेक्ट, डी करेक्ट, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। एनीवन, उसका आंसर क्या है एग्जैक्ट एक्चुअल? नो, डिसिमल में नहीं है। 12 है, 12। देखो कैसे। लेट्स रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26। द नंबर मतलब पता नहीं है ना, मैं तो लेट्स अज्यूम इट एज एक्स। सो द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26, मतलब एक्स का 26 के साथ रेशियो इज सेम एज 6 का 13 के साथ वाला रेशियो। द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। नाउ रीअरेंज एंड टेल मी व्हाट इज एक्स। 12 आता है। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है क्या? वर्डिंग थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन का, ट्रिकी। हाँ, that is 12, हाँ। 11.999 we saw on first day, right? That is 12. हम्म। ओके। कीर्ति, कैन यू टेल मी फिफ्थ वन का आंसर? फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब कैसे लिखना चाहिए? समझ नहीं आया, ओके ठीक है। मुझे बोलो फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब ए बी सी डी में से कौन सा वैल्यू उन्होंने पूछा है? फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब डी, ये वाला पूछा है, राइट? ठीक है। हमें तो पता है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी होता है। हम्म। तो इसको लिखते हैं, ये ए हुआ ना, तो 2a बाय बी मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय, कहना से ये जो हमें चाहिए वो नंबर, करेक्ट? वो फोर्थ प्रोपोर्शन हमें पूछा है। फाइन। तो चलो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं अब। वो क्वेश्चन मार्क को उस साइड को लेता हूं, तो सी तो वैसा ही है। ये ए स्क्वायर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, एंड कहने से 2a यहाँ पे नीचे आ जाएगा।
करेक्ट? कीर्ति समझा? फिर ये a और यहाँ का एक a कैंसिल हो जाएगा इंडाइसिस के रूल्स यूज करके, a रेस टू 2 माइनस 1, तो ac/2 बचेगा। देखो चेक करो सबका आया है क्या ac/2? हाँ, गॉट इट एवरीवन? ac/2। बाकी लोग, करिश्मा, धनश्री, कैरन, कैरन ने बोला अभी, संजोत, आयुष, आया ना सबका ac/2? भूषण, भूषण तो साइलेंट हो गया थोड़ी देर से, आया है ना? ओके। सिक्स्थ वाज ट्रिकी, सिक्स्थ का आया किसी का? 5/6, एनीवन एल्स? 15/2, ओके। आई थिंक 15/2 है। देखते हैं सॉल्व करके। हाँ, व्हाट हैव यू गॉट? या नहीं आया? आया नहीं? ओके, करते हैं चलो। क्या नंबर्स बोले? 1/2, 1/3, 1/5, 1/x। ये प्रोपोर्शन में ऐसा बोला है, मतलब ए बी सी डी। तो मुझे बोलो कैसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? कैन आई राइट एज ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी? ये समझा क्या सबको? इज टू मतलब डिवाइडेड बाय, मतलब कैसा है? 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x। सबको याद है क्या? डिवाइडेड बाय 1/3 है तो उसके जगह पे हम मल्टीप्लाइड बाय 3/1 लिख सकते हैं। हम्म, क्योंकि 1/3 से डिवाइड करें तो 3 को ऊपर लेके हम मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या आएगा? 1/5 इंटू एक्स बाय 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू x/5। तो फिर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 5, मतलब 15/2। आयुष 5/6 कहाँ से आया था तुम्हारा? ऐसे ही? ओके, देखो ठीक से एंड लेट मी नो क्लियर है क्या सबको? धनश्री, करिश्मा, भूषण, समझा क्या आप? अच्छा हाँ, ओके। जब भी डिवीजन में से फ्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन में उसका रेसिप्रोकल ले लो। हम्म, ओके। लास्ट वन, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। मतलब दे आर आस्किंग 12x स्क्वायर, फिर ये b बीच का नंबर एंड 27y स्क्वायर। मीन प्रोपोर्शनल ना, मीन पूछ रहे हो वो। Fine. कैसा होता है इक्वेशन? हमने देखा ना अभी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। मतलब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। कितना होता है 12 इंटू 27? 324 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से आ जाएगा, राइट? इसका रूट लेना पड़ेगा, बी लाना है तो क्या आएगा बी? फिर 18 एंड एक्स एंड वाई। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो 18xy इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। फाइन। रेशियोज के 3 होमवर्क है ही, तो आज के लिए इसके आगे के होमवर्क तो थोड़े। अब इसमें एक चीज देखो सिर्फ,
16th जो है क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, उसमें ये एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है कुछ तो, जिसके वजह से उसका मतलब नहीं निकलता क्वेश्चन को, तो स्किप करो वो क्वेश्चन। कुछ तो मिस्टेक है उसमें, एंड वो इग्नोर किया तो नहीं आता आंसर, मतलब कुछ तो अलग है उस क्वेश्चन में। फॉरगेट अबाउट दैट क्वेश्चन राइट नाउ। ट्राई क्वेश्चन नंबर्स, ये मत करो अभी, एक थोड़े आगे के देता हूँ। एक सेकेंड ना, ये ट्राई करो क्वेश्चंस 56, 57, 58, 59, 60। 56 टू 60 ट्राई कर लो होमवर्क के लिए आज। तो ये होमवर्क है एडिशनल क्वेश्चन बैंक का 56 टू 60 एंड रेशियोज का 20, 21, 22। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ओके फाइन, ठीक है देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। कल मिलता है अरे हाँ, कल मिलता है विद नेक्स्ट पार्ट, प्रोपोर्शंस कल कंप्लीट करेंगे। एंड वंस वी आर डन विद प्रोपोर्शंस, मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर विल गो टू नेक्स्ट चैप्टर इक्वेशंस का। अगेन बेसिक बेसिक ही चैप्टर है बस। फाइन, चलो देन बाय एवरीवन। यस बाय। यस बाय।